Hello students, welcome to the class 12 Indian Economics. Today we will discuss chapter 3 Liberalization, Privatization and Globalization, in which we have already discussed about the liberalization policy and why this LPG policy has been implemented in our economy in the year 1991 and what kind of effects have been seen in our economy due to the implementation of the LPG policy. The positive as well as negative impact of this policy has also been discussed in the class. Today we will discuss the another aspect of that is outsourcing. What is outsourcing? Outsourcing is the process through which services were outsourced from the other countries. Nowadays, due to the globalization, each and every country in the world are watching for the low cost and better services, where from they can get the better services, better production opportunities at low cost. They are searching throughout the world, and in which country they found, the various companies are found that this is cheaper in this country, they are hiring those services from that country. This is outsourcing. Outsourcing क्या है कि जो हमारे पास नहीं है वह दूसरे से हायर करना, बाहर से लेना। ठीक है, वर्तमान में बड़ी बड़ी कंपनियां भी आउटसोर्स कर रही हैं, जहां उन्हें सस्ता मिल रहा है आउटसोर्स कर रही हैं। आउटसोर्सिंग क्या है कि जो हमारे पास नहीं है, हमें जरूरत है और मार्केट में है या किसी दूसरे के पास है, हम उसे कुछ समय के लिए ले लें और उसका जो कॉस्ट पड़े हम उसे चुका दें। ठीक है, ये होता है आउटसोर्सिंग। तो जैसे इसके पहले हमारे देश की कंपनियां जो थी प्रोडक्शन के लिए चाइना को ऑर्डर दे रही थी। क्यों? क्योंकि चाइना में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम पड़ रहा था इन कंपैरिजन टू आवर कंट्री। हमारे देश में अगर वो प्रोडक्शन करवाते हमारे देश की कंपनियां हैं, हम अपने देश में प्रोडक्शन नहीं करवा के चाइना को दे रही हैं प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि वहां सस्ता हो रहा है, लेबर बहुत चीप है, सस्ता है और बहुत फास्ट वहां के लोग वर्क करते हैं, कम समय में अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, इसलिए वो कंपनियां वहां से प्रोडक्शन के लिए ऑर्डर कर देती हैं। तो ये वर्तमान समय में पूरा विश्व जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से सब सर्च कर रहे हैं, इधर उधर हर जगह बहुत एकदम कॉशियस हो गए हैं और वर्तमान समय में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, वॉइस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बड़े पैमाने पर चल रही है। और यह जो आउटसोर्सिंग है, यह किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कंपनी के द्वारा, किसी भी देश के द्वारा, किसी भी देश से लिया जा सकता है, जिसमें उस देश को सुविधाजनक जो चीज लगेगी जिस देश से, वह चीज हायर की जाएगी। तो आइए देखते हैं और क्या क्या चीजें हमारे भारत देश में की जाती हैं आउटसोर्सिंग के तहत। मोस्ट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एंड इवन स्मॉल कंपनीज आर आउटसोर्सिंग देयर सर्विसेज टू इंडिया बिकॉज दिस कैन बी अवेल्ड एट ए चीपर कॉस्ट विथ रीजनेबल डिग्री of skill and accuracy.
the main services which are being outsourced to India by the other countries are voice-based business process known as BPO, record keeping, accountancy, banking services, film editing, book transcription, clinical advice, or even teaching with the help of modern telecommunication links including the internet, the text, voice, and visual data regarding the services is digitized and transmitted in real time over continents and national boundaries. India has become a destination for global outsourcing in the post-reform period because of low wage rates and availability of skilled manpower. From India, several kinds of services are outsourced in the whole world by the different countries. Even teaching is also outsourced from India. Teaching services are also hired outsourced from our country because in our country it is both cheaper and efficient. Services are provided at cheaper rate. That is why it is outsourced in the whole world. Now come to the World Trade Organization, WTO. The World Trade Organization was founded in 1995 as the successor organization to the General Agreement on Trade and Tariff, GATT, was established in 1948 with 23 countries as the Global Trade Organization to administer all multinational trade agreements by providing equal opportunities to all countries in the international market for trading purposes. अब आइए देखते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई और पूरे विश्व में सबसे पहले 1948 में इसकी स्थापना की गई गेट के माध्यम से, गेट के नाम से, जिसका काम था, जिसमें 23 विभिन्न राष्ट्र शामिल हुए थे कि ये सुविधाएं प्रदान करना कि किस माध्यम से, किस तरीके से हम एक दूसरे से वस्तु एवं सेवाओं की आदान प्रदान करेंगे और किस रूप में हम उसका पेमेंट करेंगे। ये सब बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, जिसे पालन करना हर देश को जरूरी होता है और सब एक दूसरे के बात को ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कन्फ्लिक्ट, झगड़े ना उत्पन्न हो, किसी भी प्रकार के टेंशन ना उत्पन्न हो, इसको दूर करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। ठीक है, यह पूरे विश्व में एक देश दूसरे देश के साथ किन नियमों का पालन करेगा, किसी वस्तु के आदान प्रदान, किसी व्यक्ति के आदान प्रदान, किसी सेवा के आदान प्रदान पर किस तरह के नियमों का पालन करना पड़ेगा, यह WTO ही वर्तमान समय में डिसाइड करती है और विश्व के सभी देशों को इनके द्वारा निर्धारित किए गए नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। अगर किसी देश को इस WTO के प्राविधान से किसी भी प्रकार की आपत्ति दर्ज की जाती है तो WTO उसके ऑब्जेक्शन को दूर करने की कोशिश करती है। WTO का ही यह काम है कि किसी भी देश, दो देशों के बीच में या WTO से किसी भी प्रकार के रुकावट, बैरियर्स को दूर किया जाए, प्रॉब्लम्स को दूर किया जाए, आपस में मिल बैठ करके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएं जो विश्व के सभी देशों को मान्य हो।
इसलिए WTO की स्थापना विश्व में की गई। अब आइए देखते हैं WTO के क्या पॉलिसी फंक्शंस हैं, क्या करती है। WTO एस्टैब्लिशेस अ रूल बेस्ड टैरिफिंग ट्रेडिंग regime in which nations cannot place arbitrary restrictions on trade. The WTO agreements cover trade in goods and services to facilitate bilateral and multilateral trade by removing tariff and non-tariff barriers. WTO aims at enlarging production and trade of services to ensure optimum utilization of world resources. It helps in providing greater market access to all member countries as it provides equal opportunity to all countries in the international market. So, in this way, these are the process of outsourcing and WTO establishment of WTO. तो WTO का काम है कि विश्व में ट्रेड से संबंधित हर तरह के रूल्स रेगुलेशंस बनाना, और किसी देश के साथ किसी देश का किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है ट्रेड से संबंधित, तो उन समस्याओं का निराकरण करना, यह WTO का काम है। अब आइए देखते हैं नया टॉपिक, वह है हमारा कि इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग रिफॉर्म्स एंड असेसमेंट और एन अप्रेजल ऑफ LPG पॉलिसी। तो अब देखिए इस टॉपिक में हम देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमिक्स में जो हमने LPG पॉलिसी लागू की 1991 में, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसके संदर्भ में हम देखेंगे। पहला, आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। हमारे फेवर में, देश के फेवर में इस LPG पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन से क्या प्रभाव पड़ा, इसके पक्ष में इससे हमें क्या फायदा हुआ, हमारे देश को क्या फायदा हुआ, इसके संदर्भ में पहले हम देखते हैं। पहला, इंक्रीज इन ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी। पहला पाया गया कि हमारे इकोनॉमी में हर सेक्टर में ग्रोथ रेट इंक्रीज हुआ है इस LPG पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन से, तो यह एक तरह से अच्छा माना जा रहा है। दूसरा, हम देख पा रहे हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस, हमारे इकोनॉमी की जो ढांचागत परिवर्तन हम इसमें पाए हैं LPG पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन से। और ये ढांचागत परिवर्तन किस तरह के, हर क्षेत्र में यह देखा गया है। क्या है? स्ट्रक्चरल चेंज रेफर्स टू शिफ्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। ड्यूरिंग द रिटर्न पीरियड इट वाज नोटिस्ड दैट ग्रोथ रेट ऑफ about 8% is mainly driven by growth in service sector। तो यह स्ट्रक्चरल चेंज किस प्रकार से देखा गया कि प्राइमरी सेक्टर से लोग सेकेंडरी सेक्टर की तरफ प्लान कर रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर, और तीनों ही सेक्टर में अल्टीमेटली ग्रोथ देखा जा रहा है और उनके स्ट्रक्चर में परिवर्तन देखा गया है। तीसरा है इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। और हमारे जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें भारी बढ़ोतरी हुई है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे देश का बहुत ज़्यादा बढ़ा है LPG पॉलिसी लागू होने से। और इतना ही नहीं, FDI भी बढ़ी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशों से हमारे देश में बड़े पैमाने पर निवेश भी हुआ है। तो यह फायदा देखा गया हमारे देश में LPG पॉलिसी लागू होने से। और चौथा फायदा हुआ है प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट। हमारे देश से बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट का प्रमोशन हुआ है, जो किसी भी इकोनॉमी के लिए एक
वरदान साबित होती है। अगर किसी देश से फिनिश्ड गुड्स का एक्सपोर्ट बढ़ता है, दैट इज अ गुड साइन फॉर दैट कंट्री। अगर हमारे देश से बड़े पैमाने पर फिनिश्ड गुड्स का एक्सपोर्ट हो रहा है तो यह हमारे देश के लिए सौभाग्य की बात है, गरिमा की बात है। फिनिश्ड गुड्स का, रॉ मटेरियल का नहीं, फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। एक्सपोर्ट अगर रॉ मटेरियल का बढ़ता है, दैट इज नॉट अ गुड साइन। एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स अगर इंक्रीज होती है, दैट इज अ गुड साइन फॉर द कंट्री, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन, और देश में इन्फ्लेशन पर बड़े पैमाने पर कंट्रोल हुआ है। दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही थी, हर वस्तु के दाम इंक्रीज कर रहे थे, वह कंट्रोल हुआ है। महंगाई बहुत दिनों से प्राइस इंक्रीज नहीं हो रही है, इस पीरियड में कंट्रोल किया गया है। उसके बाद कंट्रोल ऑन फिस्कल डेफिसिट, और हमारा फिस्कल डेफिसिट देश का वह भी कंट्रोल किया गया है, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस था वह कम हुआ है, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर का। उसके बाद सातवां है रिडक्शन इन डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में जो डेफिसिट पहले ज़्यादा थी वह डेफिसिट कम हो गया है। जो डिफरेंस डेफिसिट बजट था बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में, दैट डेफिसिट हैज बीन डिक्रीज्ड टू अ साइमल्टेनियस इंपॉर्टेंट लेवल, बहुत कम रह गया है यह डिफरेंस। और तो एलपीजी पॉलिसी से काफ़ी फायदा हुआ है। अब आइए देख लेते हैं लिमिटेशंस, क्रिटिसिज्म ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। यह जो एलपीजी पॉलिसी हमारे देश में लागू की गई, तो इससे फायदा तो हुआ है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं, इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमारे देश पर पड़े हैं, हमारी इकोनॉमी पर पड़े हैं, उसे भी हमें देखना पड़ेगा। क्या द रिफॉर्म process has been widely criticized for not being able to address some of the basic problems facing our economy, especially in the areas of employment, agriculture, industry, etc. Let us know limitations of economic reform. First, contradiction between growth and employment. Though the GDP growth rate has increased in the reform period, yet reform-led growth has not generated sufficient employment opportunities in the country. Unemployment occurred because public sector stated retrenchment of workers because of this low performance and overstaffing, and the private sector terminated employees because of modernization and technological advancement. पहला ये है क्रिटिसिज्म क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट में कॉन्ट्राडिक्शन देखा गया। किस तरह का कॉन्ट्राडिक्शन, कि ग्रोथ तो देश का हुआ है, इकोनॉमी का ग्रोथ हुआ है, लेकिन बेरोजगारी बढ़ गई है। ग्रोथ हुआ है और बेरोजगारी बढ़ रही है, यह कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है। ग्रोथ तभी होता है देश का जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, लेकिन यहां ग्रोथ और इकोनॉमी की दिखाई दे रही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी डिक्लाइन कर रही है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास है। क्यों ऐसा हो रहा है? यह इसलिए हुआ, एलपीजी पॉलिसी लागू होने से हुआ, क्योंकि ग्रोथ तो हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, इनकम बढ़ी है, लेकिन बेरोजगारी बढ़ रही है। क्यों? कि नई टेक्नोलॉजी आने से जो वर्कर्स हैं वो नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर पाए, उन्हें निकाल दिया गया, कंपनियां निकाल दी, और कुछ गवर्नमेंट भी न्यू टेक्नोलॉजी लाने से और इम्प्लीमेंटेशन कुछ अपने फॉर्म बंद कर दिए, इसकी वजह से। दूसरा है रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, एडवर्स इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर।
और इस रिफॉर्म से एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है कृषि क्षेत्र पर भी। किस प्रकार का? रिफॉर्म्स हैव नॉट बीन एबल टू बेनिफिट एग्रीकल्चर वेयर द ग्रोथ रेट हैज बीन decelerating. It is because public investment in agriculture infrastructure like irrigation, power, roads, market, linkages and research and extension etc. which played crucial role in the Green Revolution has been reduced in the reform period. Removal of fertilizer subsidy increased the cost of production, which severely attached the small and marginal farmers. Indian farmers had to face increased international competition because of LPG policy, which had encouraged reduction in import duties on agricultural products, removal of minimum support price, etc., and lifting of quantitative restrictions on agricultural products. There was mere focus on production of cash crops instead of production of food grains. Because of export-oriented policy strategies in agriculture, it resulted in increase in prices of food grains. तो कृषि क्षेत्र में क्या दिखाई दिया? रिफॉर्म की वजह से नकारात्मक प्रभाव इसका बड़े पैमाने पर कृषि क्षेत्र में पड़ा, क्योंकि जितने पैमाने पर डेवलपमेंट, रोड, मार्केट, इरिगेशन की होनी चाहिए थी, वह सुविधा किसानों को नहीं मिली। किसानों के जो खाद पर सब्सिडी दी जा रही थी वह गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, जिससे किसानों की जो प्रोडक्टिविटी है, वह प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वह बढ़ गई, और किसान जो है वर्ल्ड लेवल में जो कंपटीशन उनको करना पड़ा, जिसके वजह से उनको मात खाना पड़ा वर्ल्ड लेवल कंपटीशन में उनकी कमोडिटीज़ की वजह से। एलपीजी की वजह से उन्हें वर्ल्ड लेवल कंपटीशन करना पड़ रहा है, क्योंकि भाई जब इंटरनेशनल बाउंड्री ख़त्म कर दी गई है तो वर्ल्ड लेवल कंपटीशन करना ही पड़ेगा हर क्षेत्र में। और कैश क्रॉप की वजह से फूड ग्रेन्स का उत्पादन किसानों ने बंद कर दिया, जिसकी वजह से फूड ग्रेन के प्राइसेस देश में बढ़ गए। तो ये कई नकारात्मक प्रभाव कृषि क्षेत्र में भी देखने को मिले। अब आइए रिफॉर्म्स इन इंडस्ट्री, लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्री में भी यह रिफॉर्म देखने को मिला। वह किस तरह का कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैज आल्सो recorded a slowdown because of decreasing demand of industrial products due to various reasons such as cheaper imports, inadequate investment in infrastructure etc. और इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी गिरावट देखी गई हमारे देश में, क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ तो हमारे देश की जो इंडस्ट्री उत्पादन कर रही थी, हमारे देश को उन उत्पादन प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई, क्योंकि हमारे देश में जो इंडस्ट्री उत्पादन कर रही है जो कमोडिटी, उस कमोडिटी की प्राइस ज़्यादा है जब, और उससे अच्छी क्वालिटी की गुड्स हमें बाहरी देश से हमारे देश में मिल रहे हैं। तो क्या करते हैं हम, जाहिर सी बात है जो सस्ता मिलेगा, अच्छा मिलेगा, वही हम यूज करेंगे। तो इसकी वजह से इंडस्ट्री भी कंपटीशन फाइट नहीं कर पाई, यह दिक्कत हुई। दूसरा, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन आवर इकोनॉमी वाज ओपन टू ग्रेटर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज, और डेवलप कंट्रीज से बड़े पैमाने पर आदान प्रदान होने लगा। तो विदेशी कंपनियां जो अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोड्यूस कर रही हैं और सस्ते में प्रदान कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है हम उसे लाइक करेंगे। अपने देश में उत्पादन सही नहीं हो रहा है तो हम उसको डिसलाइक करेंगे। तो इंडस्ट्री को उसके आधार पे अपने आप को, हमारे देश की इंडस्ट्रीज को बनाना है, तब हम कंपटीशन फाइट कर पाएंगे। और चौथा है
डिज इन्वेस्टमेंट, हमारे देश में गवर्नमेंट एवरी ईयर फिक्सेस अ टारगेट फॉर डिज इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट पब्लिक सेक्टर unit. For instance, in 1991 it was targeted to mobilize 2,500 crore through डिज इन्वेस्टमेंट। और डिज इन्वेस्टमेंट हमारे देश में गवर्नमेंट के द्वारा डिज इन्वेस्टमेंट किया गया। डिज इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर में जो गवर्नमेंट का यूनिट है उसे प्राइवेट सेक्टर को बेच देना, यह डिज इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ठीक है, या बड़े पैमाने पर 2,500 करोड़ रुपया हमको गवर्नमेंट को इससे ले आना है, डिज इन्वेस्टमेंट से पैसा इकट्ठा करना या टारगेट रखा गया, जिसकी वजह से भी यह क्यों हुआ, यह एलपीजी पॉलिसी लागू होने से। और इससे ऑल्सो द प्रोसीड्स फ्रॉम डिज इन्वेस्टमेंट वेर यूज्ड टू ऑफसेट द शॉर्टेज ऑफ गवर्नमेंट revenue rather than using it for the development of PSEs and building social infrastructure in the country. हालांकि इस डिज इन्वेस्टमेंट्स का उपयोग देश की उन्नति में ही किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए किया गया इस पैसे का उपयोग, लेकिन फिर भी यह फायदे का सौदा उतना नहीं रहा देश के लिए। पांचवा है रिफॉर्म्स एंड फिस्कल पॉलिसी, इनएफेक्टिवनेस ऑफ फिस्कल पॉलिसी। और हमारे देश की जो फिस्कल पॉलिसी है, वित्तीय जो नीति है, वह गड़बड़ रही है इस दौरान। वह जिस तरह की फिस्कल नीति अपनानी चाहिए थी उस तरह की फिस्कल नीति नहीं अपनाई गई। कैसे? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट इम्पोज लिमिट ऑन द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर स्पेशली इन सोशल सेक्टर। Second, the tax reduction was done to curb tax evasion and increase in government revenues, but this policy did not actually result in increase in tax revenue of the government. Tax incentives were provided to foreign investors to attract foreign investment, which reduced the scope for raising tax revenue. This has a negative impact on developmental and welfare expenditure. Tariff reduction also reduced the scope of generating revenues through custom duties. These are the various tariff policies and fiscal policies which are not fruitful for our country during the LPG policy in our country. And number 6, increase in inequalities, and due to the implementation of the LPG policy in our country in the year 1991, in this period after 1991 in our country, at a larger scale the inequalities happened in our country. देश में, हमारे देश में पंचवर्षीय योजना के तहत 5 ऑब्जेक्टिव दिखाई जो निर्धारित किए गए थे, उसमें इक्वलिटी एक ऑब्जेक्टिव थी कि देश में सबके अंदर समानता ले आई जाएगी। लेकिन एलपीजी पॉलिसी लागू करने से देश में यह समानता का जो ऑब्जेक्टिव है यह एकदम से पूरा नहीं हुआ। देश में बड़े पैमाने पर असमानता आ गई, गरीब गरीब होता गया और धनी धनी बनता चला गया ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एलपीजी पॉलिसी इन आवर कंट्री। आज यहीं तक, थैंक यू।